بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان فیملی کوئز کے پروگرام میں کے تمام سامعین اور ناظرین کو میرا سلام۔ آج جس موضوع پر ہمیں یہ گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق ٹیلنٹ سے ہے۔ ٹائٹل کچھ اس طرح سے ہے، نرچرنگ ٹیلنٹس ان اسلامک اسکیم، یعنی صلاحیتوں کی نمو کے لیے اسلامی اسکیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی واقعی اس کی اسکیم پائی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے یقیناً پائی جاتی ہے، یا میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ قرآن کی تعلیمات سے اور جس انداز سے قرآن نازل ہوا اس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک باقاعدہ اسکیم کو آپریٹو دیکھتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کو جن کے درمیان یہ کتاب نازل ہو رہی تھی کس طرح سے ان کی صلاحیتوں کو، ان کو ٹیلنٹس کو اس نے ابھارا اور پنپنے کا موقع دیا۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ واقعتاً یہ ٹیلنٹ کیا چیز ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ۔ آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، لفظ انگریزی کا ہے تو ڈکشنری سے معلوم ہوگا کہ وہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں کسی بھی انسان کے اندر، اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے۔ یہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور کسی خاص موقع پر ان کا اظہار ہوتا ہے اور ایفرٹلیسلی ہوتا ہے، وہ ٹیلنٹ کہلاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو صلاحیتیں انسان ایکوائر کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، جن کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ اسکل کہلاتی ہیں۔ تو ٹیلنٹ اور اسکل میں فرق یہ ہوا کہ ٹیلنٹ از نیچرل ویئر ایز اسکلز آر ایکوائرڈ۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے کے دوران نازل ہوا، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اس 23 سال کے عرصے کی میں جو جدوجہد کی گئی، جو پیغام، الہی پیغام انسانوں تک پہنچایا گیا، اس کے نتیجے میں بڑے اسپیکٹیکولر قسم کے نتائج سامنے آئے، بڑے زبردست اور ایسے نتائج جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایسے افراد جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ اتنے ٹیلنٹڈ اور اتنے زبردست قسم کے نکلے کہ انہوں نے محض رسول اللہ کے انتقال کے 12 سال کے اندر دنیا کی اس وقت کی جو سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، ایران کی ساسانی سلطنت اور روم کی بیزنٹائن سلطنت، ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب یہ تمام what a period, just 12 years، یہ تمام طاقتیں ان لوگوں کے ذریعے ختم ہو گئی، ٹاپل ہو گئی، پوری طرح سے ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ جو لوگ ابھی تک چھوٹے چھوٹے قبائل میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی نہ کوئی بڑی جنگیں لڑی تھی اور نہ کوئی بہت بڑی تہذیب قائم کر سکے تھے۔ یہ ایک عجوبہ ہے، تاریخ کا ایک عجوبہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہیں سے ہمارا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیلنٹس ابھر کے سامنے آئے اس 23 سال کے جدوجہد کے نتیجے میں، وہ کیا ٹیلنٹ تھے اور کس طرح سے ابھرے۔ میں آپ کو تاریخ میں لے کے چلتا ہوں، لیٹ اس سی کہ ہوا کیا ان فیکٹ۔ آپ ذرا دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی حکومت اسلامی یا اسلامی حکومت قائم ہوئی، جس کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے آدمی تھے؟ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی جانتے ہیں کہ وہ اپنے کندھے پر کپڑوں کا گٹھر اٹھائے مکہ کی گلیوں میں کپڑے بیچا کرتے تھے۔ یہ ان کی تجارت تھی، یہ ان کا مقام تھا۔ کوئی بہت بڑے سردار نہیں تھے اپنے علاقے کے، ایک باعزت آدمی تھے، لیکن اور اس 23 سال کے جدوجہد کے نتیجے میں، 23 سال جو قرآن سے جو ان کا انٹریکشن ہوا، اس کے نتیجے میں وہ پہلی اور اولین جو اسلامی سلطنت تھی اس کے سربراہ بن گئے، اس کے خلیفہ بنائے۔ اور یہ تمام یہ جو دو سلطنتیں ختم ہوئیں، بیسیکلی ان کا آغاز حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہی ہوا اور اس کا اختتام دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ خود حضرت عمر کیا تھے، جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کا بیسٹ ٹائم جو پاس کرنے کا تھا وہ کشتی رانی کرتے تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، پہلوانی کرتے تھے اور تلوار زنی کرتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے،
शिकार के लिए जाया करते थे। ये उनका बेहतरीन वक्त था, इसी इसमें गुजारते थे। ऐसा नहीं था कि किसी अपने कबीले के या किसी और कबीले के सरबराह बन गया हो, वो ऐसा कभी नहीं था। लेकिन इस 23 साल के जद्दोजहद के नतीजे में ये एक ऐसी शख्सियत सामने आई दुनिया के जो अपने वक्त की या तारीख के सबसे बड़े हुक्मरान की हैसियत से उनको तस्लीम किया गया है। व्हाट ए मैन, एक आदमी जो इतना लोएस्ट ऑफ द लो, ऑर्डिनरी, मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन था, लेकिन इस 23 साल के नतीजे में, 23 साल के जद्दोजहद के नतीजे में, कुरान से इंट्रैक्शन के नतीजे में उमर द ग्रेट बन गए और दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत के सरबराह बन गए, बेहतरीन हुक्मरान, तमाम तर ऐसी सलाहियतें जो इससे पहले हुक्मरानों में नहीं पाई गई। इतनी जबरदस्त सल्तनत को मैनेज करना आसान काम नहीं था, जबकि इससे पहले कोई तजर्बा नहीं था। इसी तरह देखें तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, दुनिया के अजीम तरीन सिपह सालार, इस्लाम में आने से कबल किसी बड़ी जंग का कोई तजर्बा उनको नहीं था। ऐसा नहीं था किसी बहुत बड़ी फौज के सिपह सलारी की हो और बड़े तजर्बा उनका रहा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो टैलेंट उभरा, ये जो टैलेंट नर्चर हुआ 23 साल, महज 23 साल के अरसे के दौरान, उसने खालिद बिन वलीद को आज तक की दुनिया का सबसे बड़ा सिपह सालार बना दिया। उससे बड़ा कोई सिपह सालार नहीं गुजरा, ये तारीखदां और मौरखीन इसको मानते हैं। महज 70 साल के अंदर, जरा इमेजिन कीजिए, 70 साल गुजरे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को कि दुनिया का, आलम इस्लाम का अजीम तरीन साइंसदां खालिद बिन यजीद पैदा हो गया। खालिद बिन यजीद की बाहर से नहीं आया था, इसी कुरैशी कबीले कुरैशी कबीले से उसका ताल्लुक था। हजरत माविया, अमीर माविया का ग्रैंडसन, यजीद का बेटा साइंटिस्ट था, बड़ा साइंटिस्ट, अव्वलीन साइंटिस्ट। तारीख साइंस पढ़िए, आलम इस्लाम का पहला साइंसदां खालिद बिन यजीद उनका नाम आता है। अब देखिए, खालिद बिन यजीद का बेटा, जब यजीद का इंतकाल हुआ तो जाहिर है कि इनके दो बेटे थे जो कि जिनको हुकूमत मिल सकती थी, जो इस काबिल थे कि उनको हुकूमत दी जाए। उन दोनों ने इनकार कर दिया और कहा ये कि जो सल्तनत रसूल सल्लम की औलाद के खून से इसके हाथ रंगे हुए हों, मैं उनकी उस सल्तनत की सरबराही हम उसे कबूल नहीं कर सकते। तो ये खालिद बिन यजीद उस कैटेगरी के लोगों में से थे। खालिद बिन यजीद पहला साइंसदां हैं जो तारीख साइंस जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको सबसे पहला नाम इनका नजर आता है। ये हुआ महज 70 साल के अंदर। वो अपने वक्त का अच्छा एक बड़ा केमिस्ट और अपने वक्त का बड़ा एस्ट्रोनॉमर और मेटलर्जिस्ट शख्सियत थी, तो इन चीज़ों में महारत रखती थी। और तारीख में मिलता है कई मसाइल जब हुकूमत वक्त को दरपेश आए जो कि इसी से मुताल्लिक थे। मेटलर्जिकल प्रॉब्लम खड़ी हुई कुछ सिक्का बनाने के सिलसिले में, तो खालिद बिन यजीद का रोल उसमें तारीख ने रिकॉर्ड किया है। He was the man who created things suitable for creating, for having his own coinage for the Islamic government of that time. आपने देखे 23 साल के दौरान कुरान नाजिल हुआ और विद इन फ्यू ईयर्स ओनली, बल्कि उसी दौरान कुरान को अल्फाज के साथ, अल्फाज के सही तलफ़ुज़ के साथ, और न सिर्फ ये बल्कि ज़ोर ज़बर के साथ कुरान मुरत्तब कर लिया गया। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक बुक इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ, उन लोगों ने जिन लोगों के बारे में जिनके इल्मी का विषय ज़्यादा नोन नहीं है, उन लोगों ने कुरान को इस तरह से मुरत्तब कर डाला। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसी तरह से आप देखें कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा न सिर्फ ये कि बहुत बड़ी आलिमा और मुफस्सिर, बल्कि एक बड़ी फौज की सिपह सलार भी बन गई। ये कहाँ से सलाहियतें आई थी? ये तारीख में रिकॉर्ड है। इस तरह की सलाहियतें लोगों के अंदर उभरी। पर आप देखिए कि महज 125 साल के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 125 साल के अंदर, और कुरैश कबीले, कुरैश के दूसरा जो क्लैन था बनु अब्बास, उसके ज़माने में अलजबरा नाम का एक डिसिप्लिन, इसका मैथमेटिक का, वो मुरत्तब हो गया और अलजबरा के नाम से एक नया डिसिप्लिन गोया के जारी हो गया। आप गूगल सर्च कीजिए, आप देखेंगे कि अलजबरा का नाम डालेंगे तो उसी दौर के और बनु अब्बास का जो दरबार था उससे वाबस्ता एक शख्स अल-ख्वारिज़मी का नाम आएगा और उस पर लिखा होगा फादर ऑफ अलजबरा। एल्गोरिथम डालिए गूगल पे, आपको लिखा हुआ आएगा
फादर ऑफ अलगोरिथम, अल-ख्वारिज़मी के नाम से। ये वो लोग थे जो कि विद इन 100 और 125 ईयर्स ये टॉप के लोग पैदा हो गए। वही असरात गोया के चले आ रहे थे। आप देखें कि हज़रत उमर के ज़माने में रुस्तम एक बड़ा एक सिपह सलार था ईरान का, उसके मुकाबले पे मुस्लिम अफवाज थी। रुस्तम हैरान था कि इतना ऑर्डनरी एक लोग जो अब तक इनको खाने पीने को चीज़ें नहीं मिलती थी, वो क्यों जंग करने आए? तो उसने कुछ नुमाइंदों को बुलाया। उसमें एक सहाबी थे रबई बिन आमिर, पूरे डेलीगेशन के साथ वो गए। रुस्तम ने उनसे पूछा कि आप लोग लड़ने के क्यों जंग चाहते हैं, क्या वजह है? आप देखिए जो क्या जवाब था। जवाब दिया कि हम ये चाहते हैं, हमारा दीन ये चाहता है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद कराया जाए। व्हाट इज मोस्ट मॉडर्न स्टेटमेंट। आज 21st सेंचुरी में भी ये स्टेटमेंट इतना ही मॉडर्न है जितना कि आज से 1500 साल कबल मॉडर्न बनता। और ये किन लोगों की ज़बान से अदा हुआ जो किसी तहजीब का हिस्सा नहीं रहे थे। ये सब कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं से आया ना, किसी एफर्ट ने, किसी जद्दोजहद के नतीजे में ये टैलेंट लोगों के अंदर उभर के आया। उसी ने एक बात और कही थी रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रुस्तम के दरबार में। आपने कहा था कि इस्लाम लोगों को तंगनाइयों से, नैरोनेस से वसतों की तरफ ले जाने वाला दीन है। इंसान अपने जहन के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सोचता है, उन पर फिक्रमंदी करता है। इस्लाम बहुत बड़े मौज़ूआत इस्लाम इंसान के सामने रखता है। तो तंगनाइयों से, नैरोनेस से बहुत ज़बरदस्त वसतों की तरफ इंसान को ले जाता है इस्लाम। हम इसलिए आए हैं आपके यहाँ कि आपके सामने दावत पेश करें, कबूल करें, बहुत अच्छी बात, ना करें तो तब्बार हमारा फैसला करेगी। ये स्टेटमेंट थे इन लोगों के। ये सवाल ये है कि ये तमाम इस तरह की सलाहियतें कहाँ से आ गई, कैसे हुआ? अब तक जो बिल्कुल नॉन लोग नहीं थे उनके अंदर ये सब बातें कैसे पैदा होगी? इसमें मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि असल रोल इसके अंदर कुरान करीम का था, जिसने खास किस्म का माहौल पैदा किया। असल में मैंने अर्ज किया ना कि जो टैलेंट्स होते हैं वो माहौल के परवरदा होते हैं। टैलेंट्स हर इंसान के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट्स होते हैं। हर आदमी के अंदर, तमाम लोगों के अंदर एक जैसे टैलेंट नहीं हुआ करते, अलग अलग टैलेंट होते हैं। लेकिन उनको उभरने, उनकी परवरिश पाने, उनको नर्चर होने के लिए एक खास किस्म के माहौल की जरूरत होती है। कुरान ने वो माहौल पैदा किया। कैसे पैदा किया? मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुरान ने कहा, तकरीबन 700 जगह पर कहा कि ये जो तुम मज़ाहिर देखते हो, मुख्तलिफ किस्म के फिनोमेना देखते हो, फिजिकल फिनोमेना देखते हो, दुनिया के अंदर बहुत से काम हो रहे होते हैं। सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो फिनोमेना है, कुरान ने दावत दी कि इन पर गौर करो, इन पर सोचो, इन पर तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। ये पहली किताब है दुनिया की जो दुनिया में रिवील हुई, जिसने कि बाकायदा ये मिशन बनाया। एक दो जगह नहीं, 700 मुकामात पर, 700 से ज्यादा मुकामात पर इन तमाम मज़ाहिर फितरत पर गौर करने के लिए कहा गया। गौर काहे के लिए? गौर कैसे होता है? यही तो होता है ना कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यही तो है ना। साइंस में हम इन्हीं तीन सवालात को गौर पर गोया के काम करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। पहले मुशाहिदा, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो ये पूरा गोया साइंस के लिए एक बैकग्राउंड डेवलप कर दिया, इंसानों को उभारा। और ये इस तरह उभारा कि इसमें डिवाइन इन्फ्लुएंस था, इसमें खुदा की रजा थी इसके अंदर। असल बात यही है। बहुत से इंसेंटिव्स होते हैं, इस पर गौर करता है आदमी, और खौस करता है, फिक्र तदब्बुर करता है, लेकिन वो इतने इम्पैक्ट नहीं डालते। लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ तो अल्लाह ने इंसेंटिव फराहम किया था कि इस इन चीज़ों पर गौर करो, मुख्तलिफ फिनोमेना पर। एक किस्म का ये माहौल था, इसके अंदर वो सलाहियत थी लोगों के अंदर उभरी। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि कुरान ने हुक्म दिया मुसलमानों को कि वो आपस में मशावरत करें। मशावरत क्या चीज़ होती है? मशावरत अपने तजर्बात का, अपने मशाहिदात का एक्सचेंज होता है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको प्रेजेंट करना, इसको समझना, एक्सचेंज करना, ये मशावरत है। हम अपने तजर्बात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, दूसरों के तजर्बात से हम फ़ायदा उठाते हैं। पूरा काम इल्मी इर्तिका के अंदर, साइंसी इर्तिका के अंदर
یہی طریقہ ہے علم کے پروگرس کرنے کا. قرآن نے اس کا حکم دیا. محض وہ پولیٹیکل مشاورت نہیں تھی جس میں ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں. اصل میں وہ ایک اسپرٹ تھی، اور جو اسپرٹ بیسیکلی علم کے ارتقاء کا باعث بعد میں بنی.